The News Hour Special Edition. Welcome back. Now, after a brief respite, just when things had started to look like they were going back to normal, the national capital is once again facing fears of sinking. Today, the water levels in Yamuna River have crossed danger levels yet again, and even now, hundreds of people are severely affected due to flood-like situation in the national capital. Several are those who had lost their homes after the spate of flood waters submerged their houses, destroyed their livelihoods. And now the Delhi government is saying that it is keeping an eye on the situation following the discharge of 2 lakh cusecs of water from Hathanikund barrage into the Yamuna River after a fresh round of heavy rainfall in upper parts. And if the water levels rise to 206.7 meters, then parts of Yamuna Khadar might again get inundated. Let's listen into the displaced residents living their lives in relief camps near the Delhi Ring Road narrate their repeated ordeals. पानी आया था जब नहीं थे और सामान किसके हाथ आएगा। वो तो एकदम पानी आया है। खाने पीने को तो मिल रहा है भैया, पर खाने पीने से वो होगा क्या जब यहाँ डरे बुरी तरह थे। तो मैं बताऊँ, हमारी जगह भी अभी सूखी नहीं, पानी भरा है, पानी भर रहे हैं, अब बताओ कहाँ जाए। पानी था जब खेतों में थे, माथे निकल के सामान लेके भागे, आधा बह गया आधा रह गया। खाना पीना आ जाता, कल से नहीं आया है। और आज तक मतलब डीडीए पहले नहीं थी, अब डीडीए आ गई। डीडीए ने मतलब ये लगा लिया कि भगाने के बहुत वो कोशिश कर रही है और भगाया जा रहा है, ये नहीं कि नहीं, सब चीज़ उजाड़ दी। मतलब ऐसा जी पानी आया उस समय हम वहीं थे, आज अचानक पानी आया और हम वहाँ से मतलब निकलना बहुत दुश्वार हो गया हमारे को। कुछ सामान हम लेके चले, कुछ मतलब बह गया। अब सूखे में भी ये लोग कहने लगे कि जी ऐसा है वहाँ मोरी गेट चलो स्कूल के अंदर हम आपको शिफ्ट कर देते हैं। अब स्कूल के अंदर हम क्या करेंगे सर, ये बताइए। अब रहना तो हमारे को यहाँ है, बच्चे हमारे पढ़े लिखे यहाँ रहे, वहाँ से क्या करेंगे। You saw the residents of Delhi alleging there that they have been almost left to fend for themselves. Now politics is taking center stage yet again. Today, Delhi Water Minister Saurabh Bharadwaj said that unlike the situation last time when the water had seeped into pumps and 3 water treatment plants had to be closed, the Jal Board has prepared and done its due diligence. The BJP is using this statement to say that does it mean that they are confessing that they did not do what they were supposed to the last time around? अब की बार जो है जल बोर्ड की पूरी टीम ने जो है जितने भी ऐसे वल्नरेबल पॉइंट थे जहाँ से पानी घुसता था वहाँ पे रीइंफोर्समेंट की है, एम्बैंकमेंट्स को बड़ा किया है। पिछली बार 208 मीटर से ऊपर जब पानी गया तो हमारे पंपों में पानी घुस गया था, 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने पड़े थे। पर इस बार जल बोर्ड के अधिकारियों ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है। हमारे तीनों ट्रीटमेंट प्लांट वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला चलेंगे। ज़्यादातर निचले इलाकों के लोग अभी भी राहत कैंपों में रह रहे हैं। सरकार ने वहाँ पे खाने पीने रहने दवा सबके इंतजाम किए हुए हैं। अगर जल मंत्री ये कह रहे कि अब हम तैयार हैं, तो दिल्ली ने जो इतना बाढ़ का मंजर देखा तबाही का, तब जल मंत्री क्या कर रहे थे? क्यों तैयारी क्यों नहीं की? 6,800 करोड़ का घोटाला यमुना में हो गया, पता ही नहीं चला कि वो पैसा गया कहाँ। जल बोर्ड तैयार है। दिल्ली में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, जहां खुद जल मंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, पिछले 12 दिन से वहां त्राहिमाम मचा हुआ है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। जल बोर्ड तैयार है। 9 साल से जो सरकार दिल्ली में है अरविंद केजरीवाल की, अगर उन्होंने सावधानी बरती होती तो आज 25,000 से ज्यादा लोग सड़कों पे नहीं है। So will Delhi once again see the same situation as a couple of days ago, or is the Delhi government not going to let that happen this time around? Have the lessons been learned? We'll ask those questions to Charu Pragya, who is the national spokesperson for the BJP, and Sanjeev Kaushik, who is a political analyst. Now, Saurabh Bharadwaj today, Charu Pragya, is saying that we are ready. We have done whatever was required to be done. The walls of the water treatment plant that was clogged last time have been raised so that they don't face same problems as the last time. Are you convinced? So, Priya, let me put some things in perspective. Around 3 months ago, Traffic Police in Delhi had given a list of 107 sites to Delhi government. They had said that these sites could have faced massive waterlogging. These roads could go underwater, and can the government please do something to fix that?
Nothing was done. That's the reason why so many of our roads are submerged. That's the reason why so many of our underpasses are submerged. Because in spite of having specific information, no action was taken. Let me tell you a little bit more. Delhi government apparently has spent 3,000 crore on desilting pumps, etc. I don't see the proof of it anywhere. I don't see receipts of this work being done anywhere. We asked of the government, I think 2 weeks ago, how many new rainwater drains did you dig up in this city in the last 9 years? We all know Delhi is a growing, thriving city. And if rains are increasing and the population is increasing, the sewage system needs to be updated too. Absolutely zero. Zero new drainage systems were put in the city of Delhi over the last 9 years. Now, the biggest argument Delhi government has always had until recently is that we can't do anything because MCD is not under us. As of today, the government of Delhi, Delhi Jal Board, the MCD, the PWD, all these departments are very firmly under the Aam Aadmi Party Sarkar of Delhi. And yet, we have a minister who can come and speak to the citizens of Delhi and say, Sab changa aisi. What kind of logic is this? What kind of governance is this? And can he not see that Delhi is sinking? Can he not see that we've got water so high that our cars are submerged? Can he not see that 30,000 people are living on the streets in Delhi in these crazy Sanjeev monsoons? Kaushik, as they say, I don't know how once he's burnt, justifying twice this and shy. he's This saying time, he's done once the work. submerged, forever shy. How does one believe Mr. Saurabh Bharadwaj when he says, "Ab ki baar to hum taiyar hain"? सालों में मेरी बात हो जाने दीजिए। मैंने कहा कि पिछले 40 सालों में जितनी बारिश नहीं हुई थी, पिछले 8 तारीख को वो बारिश हुई थी। निश्चित तौर पे दिल्ली को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आप कह सकती हैं कि दिल्ली सरकार यदि तैयार नहीं थी तो दिल्ली सरकार को ये भी बता दिया जाए कि पिछले 1.5 दशक से जो MCD में भारतीय जनता पार्टी काबिज थी, 40 से ज़्यादा ऐसे नाले लुप्त कैसे हो गए, जिस पर या तो वो अतिक्रमण करवा चुकी है, लोगों का घर बसवा चुकी है। निश्चित तौर पे परेशानियों का सबब बना हुआ है, हमें इससे कोई इनकार नहीं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो लगातार पानी पिछले 45 वर्षों में जो जमुना का पानी के जलस्तर सबसे ऊंचा हाई लेवल पे गया था, उसके वजह से जो परिस्थिति बनी है वो दिल्ली के पानी के वजह से नहीं बनी है, दिल्ली में बारिश के वजह से नहीं बनी है, दूसरे स्टेट से वो आयातित पानी है, जिसके वजह से जमुना का लेवल बहुत ज़्यादा ऊँचा हो गया। ये लोगों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये भी बात सही है कि यमुना की जो तलहटी में या यमुना के बकेट में जो लोग बसे हुए थे, सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को हुई। लगातार सरकार के मंत्री ने और सरकार के लोगों ने, नुमाइंदों ने लगातार इस पर काम किया और लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया और उसमें वो सफल भी हुए। अब पानी का जलस्तर, जब कभी भी बाढ़ की स्थिति आती है तो या तो जलस्तर बढ़े या जलस्तर नीचे हो, दोनों परिस्थितियों में बहुत मुश्किल सामना करना पड़ता है। जब जलस्तर बढ़ता है तो लोगों को बाहर की तरफ ले जाना पड़ता है और जब जलस्तर कम होता है तो हैजा होते हैं, बीमारी, तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं, मवेशियों की जान खतरे में होती है, वो मरे हुए होते हैं, सड़ांध होती है, तबीयत खराब होने की बात होती है। तो वो जो उससे निकलने का प्रयास किया जा रहा था, ये जो 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ देने की बात है, उसके वजह से ये फिर अब खतरे के निशान से जमुना ऊपर है। अब जो लोग बाहर विस्थापित हैं उनके लिए बाहर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आप एक बार मिलिए उन लोगों से। सर, बट उन लोगों से तो हम मिले, उन लोगों से तो हम मिले और उन्होंने ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ एक ही तरफ उंगली उठाई। वो बेचारे तो परेशान हैं, they don't have food, they don't have medicines. They're saying now finally they're getting some drinking water when they were looking at hopes of going back to normal life. Now once again they are fearing this situation to come back again. But the thing is that उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अवॉइड कौन कर सकता था? क्या वो बीजेपी की सरकार है, क्या वो आम आदमी पार्टी की सरकार है? आप हमें ये बताइए कि दिल्ली में यदि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते हैं तो देश के प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं? वो भी तो लुटियन जोन में रहते हैं। दिल्ली के सारे केंद्र सरकार के सारे मंत्री यहाँ पे रहते हैं। यदि उस समय यदि उन लोगों ने सहयोग किया होता तो ये नौबत नहीं आती। Okay. Charu Pragya, in fact, we heard one of those people, an elderly man earlier, saying that DDA was nowhere in the picture. Why we talk about MCD, PWD, Delhi Jal Board, everything. They also say that the DDA has suddenly come up from somewhere and now they are the ones who are making our life difficult. Who controls the DDA? Priya, let's stick to the facts here. I want to ask my co-panelist, आपको मालूम है कि 9 साल से आम आदमी पार्टी सरकार में है दिल्ली में, बताइए आपने कितनी ड्रेन्स खोदी है? नहीं,
जवाब दे दीजिए, और ये जवाब आप आरटीआई से पहले भी दे चुके हैं। जवाब दीजिए जब आपको ये मालूम है कि बारिश बढ़ रही है, जब पुलिस ने आपको लिखित में जानकारी दी है, उसके बावजूद आप वहां पे पंप्स नहीं लगा पाए। पंप्स का कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। And you are actually saying other ministers live in Delhi. So from tomorrow morning, Priya, maybe you and I should sit outside our house with a bucket in hand so that we can throw out our own water. Because Delhi government is passing the buck and saying, जो दिल्ली में रहता है उसकी जिम्मेदारी है, तो चुनकर आकर सरकार बनने का आपका कोई फायदा ही नहीं हुआ। Sanjeev Kaushik, when Saurabh Bharadwaj says that we are prepared this time around, BJP is saying that automatically means that they are confessing that they were not prepared the last time around. मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि पिछले 15 वर्षों में सीडी में कौन काबिज था यहाँ पे? एक फोटो दिखा दीजिए। आप कह रहे हैं आप यमुना का नाम ले रहे हैं। नहीं, वो जो 40 नालों की बात मैं बार बार कह रहा हूँ सर, वो पिछले, आप सही बोल रहे हैं कि पिछले आम आदमी पार्टी के आने से पहले बारिश होती है। नहीं, ये बहुत सिंपल सी बात। मैं बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ कि दिल्ली में जब ज्यादा बारिश होती है तो वो सारा पानी यमुना में चला जाता है, लेकिन यमुना का लेवल यदि बढ़ जाए तो वो पानी फिर शहरों की तरफ आएगा। तो यमुना के लेवल से जो परेशानियां पैदा हुई है वो यमुना के लेवल की वजह से हुई है। दिल्ली में बारिश होने के लिए आपने बोला, आपने रही बात नालों नालियों की बात हो रही है, 3000 करोड़ लगा के डिसिल्टिंग करी है। एक फोटो दिखा दो, एक फोटो दिखा दो। जानबूझ के मैडम ये बात अब तो लोग अब ये बात तो छुपी ही नहीं कि जानबूझ के किस तरह से 3 बैराज को खोलने के बाद किस तरह से जानबूझ के दिल्ली वाले को खोल दिया गया, अगल बगल के 2 बैराज को खोल दिया गया। खुल के मंत्री, हरियाणा के मंत्री खुल के कहते हैं कि इधर को यदि हम खोल देते तो हमारे यहाँ परेशानी होती, उत्तर प्रदेश में परेशानी होती, दिल्ली में जाने दो। तो दिल्ली के लोगों से जो भारतीय जनता पार्टी इस तरह से वैमनस्यता का भाव रख रही है, 3000 करोड़ आपने कागज पर लगाए हैं। एक चित्र दिखा दीजिए। मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली की जनता का हिस्सा हूँ मैं। एक चित्र दिखा दीजिए कहाँ डिसिल्टिंग करी आपने, यमुना की कहाँ डिसिल्टिंग करी? 3000 करोड़ लगाए हैं क्या यह बात छुपी हुई है कि 3000 करोड़ बारिश के पानी के साथ बह गए? कहाँ गए ये पैसे? दिल्ली को परेशान करने के लिए पानी का लेवल बढ़ाया और पानी को छोड़ा, उसकी वजह से ये परेशानी पैदा नहीं हुई। एक नई आप मुझे ये जवाब, दिल्ली में क्या बात? नहीं, ये तो क्या आप पॉइंट यही है कि दिल्ली में बारिश के वजह से ये हालात नहीं बिगड़े हैं। दिल्ली में बाहर से जो पानी है उसके वजह से ये हालात बिगड़े हैं, और जानबूझ के बाहर से पानी को लाया छोड़ा गया दिल्ली में। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। नहीं, मैंने आपसे कहा 3000 करोड़ आपने यमुना में लगाए हैं। मुझे एक चित्र दिखा दीजिए। आपके पास जवाब नहीं। मैं पूछ रही हूँ, अगर मैं टैक्स भर रही हूँ, 3000 करोड़ में से मेरा भी छोटा सा हिस्सा होगा। सर, आप किसी की जेब में जा रहा है, बारिश के पानी के साथ बह रहा है, यदि वो रेगुलेट नहीं कर पाया तो उसका क्या मतलब था? हमारे घर के बाहर भी पानी भरा हुआ है, हमारा भी नुकसान हो रहा है। No, we can sit here and argue about it forever, but try and explain these. Sir and ma'am, these nuts and bolts don't matter to those people who have been forced to go out of their houses, live on the streets without food, without water, without medicine, without any idea what is going to happen to them in future. But Charu Pragya, Saurabh Bharadwaj earlier in the day also put out pictures of what is happening in Junagadh. That tweet is on your screens right now. This was put out by Saurabh Bharadwaj, and when he put this out, he said, "Is this Gujarat?" Now, similar questions will also be raised about BJP dispensation, that you also in the states where you are haven't done enough for such images to emerge. How can you then have the moral right to point fingers at the BJP, at the Aam Aadmi Party, I'm sorry, in Delhi? Because here Aam Aadmi Party did not take action, Priya. And I am not saying that there has not been torrential rains. Rains have hit different parts of the country. There is a lot of damage that has happened in Himachal also. It's not like rain damage has not happened, but how can 19 letters be written to the government and no action was taken? How can they claim they spent 3,000 crores but they have no proof of it? Would I not be worried if this particular government is using our money, our hard-earned taxpayers' money, and scamming it off? That's the concern here. When the police gives you a warning, did you take action? Did you deploy pumps there? You said you did desilting. There's not one picture. There is not one proof. Your RTI replies are scary, frankly. That's the concern here, Priya. And please, let's not compare it to any other part of the country. Okay. Mr. Kaushik?
What about it doesn't work? प्रिया, दिल्ली की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी यदि चिंतित है तो ये अच्छी बात है, राजनीति करनी चाहिए, लेकिन इस तरह की घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। अरे सर, राजनीति करिए, सब करिए राजनीति। आप बोलिए गुजरात में जाके कि बीजेपी ने काम नहीं किया, बीजेपी आपको बोलेगी दिल्ली में आपने काम नहीं किया, कोई काम तो करे। प्रॉब्लम राजनीति से नहीं है, सब जगह विपक्ष का काम ही होता है बताना सरकार को कि आप क्या गलत कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि सारा टाइम जब आप एक दूसरे की गलतियां निकालने में लग जाते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बट द वर्क डज नॉट गेट डन। प्रिया, मेरी बात नहीं आ रही है। नहीं, प्रिया, मैं कह रहा हूं कि पानी के लेवल के बढ़ने की वजह से 3 वाटर प्लांट जो पहले बंद हो गए थे वो मंगलवार को खोले जा चुके हैं। इस बार पूरी तरह से तैयारी सरकार कर चुकी है, उसकी दीवारों को खड़ा कर दिया गया है। इस बार बंद होने की कोई संभावना नहीं है, वो लगातार उस पर काम की जा रही है, वो काम कर भी रहा है। सर, जो 2 साल तक जो एपेक्स बॉडी की मीटिंग नहीं हुई थी, सर जो 2 साल तक एपेक्स बॉडी जिसके हेड अरविंद केजरीवाल हैं, जिसकी मीटिंग नहीं हुई थी, डोंट यू थिंक इफ द दिल्ली गवर्नमेंट वुड हैव फाउंड टाइम to attend that meeting, then you wouldn't have had one bad experience to learn from. या आप पहले अवॉइड कर सकते थे, फिर आप जाके बोलते 4-5 स्टेट में जो इलेक्शन में जाने वाले हैं जहां आम आदमी पार्टी लड़ेगी कि देखिए हमने तो प्रॉब्लम्स को पहले से ही सॉल्व कर दिया। तब आप दिखाते जो जूनागढ़ का वीडियो आज सौरभ भारद्वाज दिखा रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी की सरकार कितने साल से है और उन्होंने क्या किया, हमने वो नहीं किया, आपने भी तो नहीं किया। मैं बार बार भी बात कह रहा हूं कि निश्चित तौर पे दिल्ली के जनता के प्रति सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार बच नहीं सकती, चूंकि एमसीडी में भी वो है और दिल्ली सरकार में भी वो है। लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन लगातार सरकार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल इस बात का खुन्नस निकाल रही है कि दिल्ली की जनता ने उन्हें सरकार से भी और एमसीडी से भी बाहर वापस निकाल दिया है। तो कम से कम बेबनस्ता का भाव नहीं रखे। दिल्ली की जनता ने उन्हें 7 MP भी दिए हैं लोकसभा में, तो खुन्नस वाली बात रहने दीजिए। बट द बिगर क्वेश्चन, मंत्री को बोला कि चिट्ठी मत लिखना। Unfortunately, I've completely run out of time. The problem is that irrespective of whose grudge it is, whose fight is it politically, eventually it is the people who get caught in the crossfire and have to suffer. And look at those children, they should be going to schools, they should be going about their lives, but those elderly people, when we spoke to them, said we don't even know where our next meal is going to come from. That is the problem that everybody needs to think about, not whose fault it was in the past, but as Saurabh Bharadwaj today said, that we are prepared, it is not going to happen again. All of us, including the BJP, I'm sure, would like to believe that and see that happen. Thank you, ma'am and sir, for joining me. We take a very quick break. The News Hour Special Edition.